So, hello everyone. My name is Akshay Pawar, and today we are starting the one course which is a Java language course, basic to advanced. Then we are covering the whole language with concept Java language and data structures and algorithms, and plus interview questions and preparations. Um so this is our first video or first video of our crash course, and even this is the first video of my YouTube. Then let's get started. I don't want to waste your time, and I'm going to start. So first of all, how Java code execute. So today's our topic is introduction and architecture. What is that? I'm going to explain it right now. Right, let's go. Right. So, how code execute? Firstly, what happens right now? Um, .java file converted .class file in that machine code. I will explain you what is this. Um, if you know C language, the extension is .c, right? Give the file name .java file, right? I'm considering you don't know what is a Java and you are an absolute beginner, right? I'm going all this from absolute beginner. I'm considering you don't know anything about Java. It's basic to advanced. That means you are very basic. You don't know anything to advanced that you know all thing, right? Then there is your file name .java. That is the extension .java. What is the extension? Extension is if you have a file of text file, then txt is the extension. If you have a program of C, that is the extension is .c file, right? That is a human readable and the source code. Human readable, which we can learn this code. I learn I, in example, I write 10 lines of code and I can read it. Then it is a human readable, right? And और इसको सोर्स कोड भी बोलते हैं, मतलब हम जो कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .java फाइल. उसको कंपाइलर कंपाइल करता है. And what is a compiler and for what is the interpreter? The compiler and interpreter difference is a compiler is convert all .java फाइल, मतलब समझ जो मेरा 100 लाइन का कोड है, तो 100 के 100 लाइन एक ही बार में एग्जीक्यूट करके आपको एरर बताएगा कौन से लाइन में है. और इंटरप्रेटर में क्या होता है, अगर 100 लाइन का कोड है तो आपके कोड में समझो फिफ्थ लाइन पे एरर है या फिर 8 लाइन पे एरर है, तो इधर दो एरर है, लेकिन फिफ्थ लाइन पे जो एरर था वो देख के कंपाइलर उधर ही रुक गया, वो आगे प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग नहीं करेगा, वो आगे मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा उस कोड को, राइट? दैट इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अपनी डॉट सी मीन्स जो अपनी सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर पे काम करती है, पूरा कोड एक बार रन, फिर उसके बाद सारे एरर्स दिखाती है. और अपना जावा जो है वो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों पे काम करता है. एंड हाउ आई कैन से कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में काम करता है, क्योंकि इधर स्टेप में देखो, डॉट जावा फाइल फाइनल स्टेज में आने तक दो बार, एक बार कंपाइल हुआ, एक बार इंटरप्रेटर हुआ, interpreter. That is the Java is a use both compilation and interpretation process, right? Um, then I'm going to start now, right? That .java file is convert entire file, that is inter file, compiler. What is the compiler? Dot Java, in a Java, the compiler is Java C. We discuss more about in a further. Is a compiler Java C that convert our dot Java file to dot class file. Inside the dot class file, there is a byte code. What is a byte code? The byte code is only understand by the machine. आपको मशीन को ही समझता है आपका बाइट कोड क्या होता है, क्योंकि इंटरप्रेट इसमें जो कंपाइलर है वो पूरे फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में, तो उसके अंदर का जो कोड है उसकी लैंग्वेज भी चेंज होती है, वो लैंग्वेज सिर्फ आपकी मशीन या आपके कंप्यूटर ही समझ सकती है, राइट? देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ इंटरप्रेटर? अगर डॉट क्लास फाइल इट इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स इन अ मशीन कोड. अब समझे मेरा 10 लाइन का कोड था, मेरा कंपाइलर ने पूरा 10 लाइन का कोड बाइट कोड में कन्वर्ट किया. फिर वही बाइट कोड की जो फाइल है वो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार समझ, बाइट कोड मेरा 10 लाइन का कोड था, 10 लाइन का बाइट कोड हो गया. अब वो बाइट कोड वन बाय वन इंटरप्रेट कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा. वन बाय वन क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है. वो व्हाट कन्वर्ट कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन कोड. Basic stuff, very basic stuff, right? Simple stuff.
bytecode to machine code conversion. What is the machine code? 0 and 1. The 0 and what is 0 and 1? The our computer only understand two numbers, that is 0 and 1. 0 is a low, 1 is high. It's a power supply and all thing. You don't need to remember all these things. And there is explanation, right? This code will not run our system. This code will not directly run our system. राइट है. डॉट जावा फाइल में डायरेक्ट तो आउटपुट देगा नहीं, ये तो प्रोसेस होती है, कंपाइलर होती है, कंपाइल करता है पूरा फाइल, डॉट क्लास में कन्वर्ट होता है. उसके बाद बाइट कोड जो रहता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर रहता है. तो डायरेक्ट तो सिस्टम रन नहीं कर रहा. द कोड इज नॉट डायरेक्टली रन ऑन अ सिस्टम. राइट, ये सारे प्रोसेस होते हैं. राइट, वी नीड जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, टू रन दिस. What is JVM? We discuss more about in this architecture part in JVM, Java Virtual Machine. Reason why Java is a platform independent. Why Java is platform independent? It's a very important point. I will cover right now. It is a dot Java file is converted into dot class file. अगर आप ये डॉट क्लास फाइल कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में जाओ, मैक ओएस में जाओ, या फिर लिनक्स में जाओ, कौन से भी प्लेटफॉर्म में जाके समझो दोस्त को आपके कोड चाहिए, तो आपने डॉट क्लास फाइल भेजा और उसके पास आपके पास विंडोज है और उसके पास ये लिनक्स या फिर मैक ओएस, तो आप ये डॉट क्लास फाइल अगर उसको भेजोगे तो वो रन कर पाएगा आपका कोड. व्हाट आई मीन, मतलब डॉट क्लास फाइल जो है बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. राइट, रीजन वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. डॉट क्लास फाइल कौन सी भी प्लेटफॉर्म पे कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है, रन हो सकती है. इसलिए द रीजन इज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. वही लिखा है मैंने, तो फर्स्टली कन्वर्ट बाइट कोड एंड बाइट कोड रन्स ऑन अ एनी मशीन. बाइट कोड रन्स ऑन अ एनी मशीन. इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. राइट, what is the java, then java converts these to machine code. राइट, अगर ये जो इंटरप्रेटर है, व्हाट इज द इंटरप्रेटर, इज अ बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन. राइट, जावा वर्चुअल मशीन, इट्स वी नीड टू जावा वर्चुअल मशीन टू रन दिस कोड. वी रन दिस कोड in the help of a java virtual machine. Right, then the java virtual machine, the java convert this to machine code. देन मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, जेवीएम ने इंटरप्रेटर, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन देयर इज अ इंटरप्रेटर, उसमें कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड में. राइट, एंड राइट वही लिखा है इसमें. फिर जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. ये जो इंटरप्रेटर किस में रहता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन में इंटरप्रेटर रहता है. वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में. राइट, वही लिखा है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. राइट, then your concept will become more stronger when you see the what is the architecture of a Java. um, कैसा होता है कि फंक्शनैलिटीज आपको बताता हूँ कि अभी आपके पास समझो एक बहुत बड़ा फोन, यू हैव अ फोन और यू हैव अ लैपटॉप. देर इज अ इनसाइड द लैपटॉप देर आर सब पार्ट्स और सब ब्लॉक्स. राइट, मतलब मेरा अगर एक पूरा स्क्रीन है तो उसके अंदर एक और ब्लॉक रहेगा कुछ तो प्रोसेसिंग करने के लिए, एक ब्लॉक और रहेगा प्रोसेसिंग करने के लिए, एक ब्लॉक और रहेगा एक अलग प्रोसेसिंग करने के लिए. राइट, वैसे आपका फोन का रहता है. आप समझो इट इज योर फोन स्क्रीन, उसके अंदर बैटरी है, बैटरी के अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ है. राइट, इट्स लाइक दैट टाइप. there is a four fresh words now. There is a Java development kit, Java runtime environment, Java virtual machine, and Java just in it. What is this for? This is a sub parts of Java development kit, that is GRE, JVM, JID. The sub parts of JID. Inside that JDK, all these three are inside it. We discuss now architecture of Java. Then what is the JDK? The Java Development Kit. Java Development Kit के अंदर क्या होता है? JRE plus development tool, Java runtime environment plus development tools. And firstly, what is a Java development kit? Yeah, you have a question. What is a Java development kit and why we are studying about that? That is Java development kit. That is a kit we use to run your Java program. Simple words. Java development kit is essential. It's a very important. Or without Java development kit, you can't run your Java program. Right?
Therefore, the Java development kit, inside the Java development kit, there is JRE, Java Runtime Environment plus development tools, right? Then what is a JRE? Right, you have a might be question JRE उसके अंदर क्या होता है? The Java Runtime Environment के अंदर JVM plus library classes. What is the JVM? Other you have a question. What is the JVM? That is a Java Virtual Machine, right? What is the Java Virtual Machine? The Java Virtual Machine. When I shortly say the Java Virtual Machine इधर होता है देखो डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड करने में इंटरप्रेटर जो यूज होता है दैट इज जावा वर्चुअल मशीन right without java virtual machine you can't convert the dot class file to by machine code, right? Inside the java virtual machine there is a jit. That is a very important. Why is jit? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें ही आपको समझाता हूँ what is happening over that what is the steps and steps, right? The java development kit jre plus development kit, right? डेवलपमेंट किट्स रहते हैं जो प्रोग्रामिंग में अपन यूज़ करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट फर्दर सेशंस में पढ़ेंगे. इट इज जेआरई. देन व्हाट इज जेआरई? जावा वर्चुअल मशीन्स, राइट? जावा वर्चुअल मशीन्स. व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन्स? डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जेवीएम यूज होता है. और व्हाट इज द लाइब्रेरी क्लासेस? लाइब्रेरी क्लासेस है होती है मतलब अपने जावा में ऑलरेडी किसने तो जिसने जावा बनाया उसने बहुत सारे कोड लिख के रखे, उसका एक नेम दे के रखा है, अपने नेम वो डाला उधर. मीन्स वेरिएबल, उसको वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल? द असाइन नेम टू अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, दैट इज अ वेरिएबल, राइट? तो उसका नाम देके हम वो क्लास को यूज कर सकते हैं. और अपना पूरा जावा जो है, पूरा जावा वो क्लासेस पे काम करता है. व्हाट इज अ क्लास? और ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स और क्लास पूरे इस पे ही पूरा जावा का जावा पूरा डिपेंड है ऑब्जेक्ट्स और क्लास में. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस. ऑब्जेक्ट और क्लासेस, अभी समझो मेरा एक राइट, मेरा एक सेमिनार हॉल है, राइट? मेरा एक सेमिनार हॉल है. तो पूरा सेमिनार हॉल हुआ क्लासेस, क्लास हुआ वो, right? Or our the best example is our classroom in college, right? तो अपना जो क्लासरूम है वो एक क्लास हुआ, राइट? और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स है दैट इज अ ऑब्जेक्ट, राइट? अंडरस्टैंड? दैट इज अ ऑब्जेक्ट्स, राइट? देन यू, आई थिंक यू नो class and objects. I think you got it. Java Virtual Machine, where I am, Java Runtime Environment is Java Virtual Machine plus library classes. What is Java Virtual Machine? Again, this is the interpreter. This is the interpreter as convert. What convert? Dot class file to machine code, right? Dot class file कौन से फॉर्मेट में होता है, कौन से कोड में होता है? That is a बाइट कोड. बाइट कोड हमें नहीं समझती, वो सिर्फ कंप्यूटर को समझती है, राइट? वो कंप्यूटर को समझती है सिर्फ, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जेवीएम यूज करते हैं, राइट? उसके अंदर जेआईटी होता है. व्हाट इज जेआईटी वर्क्स? देखा आपने, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कोड रन करता है, राइट? तो कैसा होता है, समझो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें मैंने 10 बार हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है मेरे को. तो मैं 10 बार हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड कर लाइन लिखूंगा. 10 लाइन का कोड हो गया मेरा. तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? जावा वर्चुअल मशीन में एक इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करेगा कि वो एक कोड को पहली लाइन रन करेगा, दूसरी लाइन रन करेगा, बल्कि सारे लाइन सेम है फिर भी वो सबको मशीन कोड में कन्वर्ट करते बैठेगा to reduce their efficiency, because it reduce their efforts of interpreter. जावा वर्चुअल मशीन के एफर्ट्स कम करने के लिए वो 10 बार एक ही लाइन कोड कर रहा है, एक ही लिखा है उसमें. तो जेआईटी, जस्ट इन इट, तो जस्ट इन इट क्या बताता है कि तूने जो पहली लाइन कोड डिकोड की है, पहली लाइन हेलो वर्ल्ड, वो तूने वही 10 बार लिखा है नीचे, तो क्यों उसको बार बार कर रहा है मशीन कोड में कन्वर्ट? राइट, मेरे पास है ना उसका कोड, तो मैं ही वो कोड तेरे को दे देता हूँ. अब उसको ही रीयूज कर ले, राइट? क्यों 10 बार माथा फोड़ी कर रहा है? एक बार में जो कन्वर्ट किया है तूने वही मैं तेरे को देता हूँ, बस उधर ही उससे काम हो जाता है. 10 बार मत, तू सेम लाइन है क्यों कर रहा है 10 बार? ये कौन बोलता है? जेआईटी बोलता है, जस्ट इन इट. इसके बारे में और पढ़ेंगे. व्हाट इज अ जावा डेवलपमेंट किट? जेडीके. इट्स प्रोवाइड ए इन्वायरमेंट टू डेवलप एंड रन द जावा प्रोग्राम. क्या है जी? आपको वही बोला था, विदाउट जावा डेवलपमेंट किट यू कांट डू एनीथिंग. यू कांट डू एनीथिंग विदाउट जावा डेवलपमेंट किट. आपके पास जावा का प्रोग्राम भी होगा, आप रन नहीं कर पाओगे
अगर आपके पास जावा डेवलपमेंट किट नहीं है तो, राइट। अभी हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की है तो मोटा मोटा चीज़ बता रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से, क्योंकि है सारी चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर रही है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें लगती है, जस्ट देयर इज आर्किटेक्चर एंड यू शुड नो, बिकॉज एग्जाम्स में, इफ यू आर इन कॉलेज, एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ जावा, एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऐसे नोट्स बनाई है, जो मैंने सारे नोट्स बनाए हैं वो ऐसे है कि आप बस इतना पढ़ के जाओगे ना तब भी आप लिख पाओगे खुद से, राइट। तो मोस्टली रिकमेंडेड, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे नोट्स, आप पढ़ लेना। So what is the next point? It is a package that includes, okay, Java development kit में आपको बताया है सारी चीजें होती है, JRE, JVM, JIT, right? तो it's package that includes development tools to provide the environment to develop your program. Environment मतलब अगर समझो आईपीएल की मैच है, राइट। आईपीएल की मैच तो रास्ते पे नहीं खेली जा सकती, राइट। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। यू नीड a stadium, right? Stadium have a their own environment, right? Then this is provided by Java Development Kit, JDK tools to provide, JDK development tools जो होती है वो provide that environment to develop your program. Best example, Stadium, right? What is a JRE? Java Runtime Environment to execute your program. Simple, एक ही लाइन, to execute your program. Java Runtime Environment, नाम में ही है Java Runtime Environment, JRE, Java Runtime Environment, JRE, बस रन करने के लिए, राइट। कंपाइलर जावा सी आपको बताया, दो डॉट क्लास फाइल होती है, उसको डॉट डॉट जावा फाइल होती है, आई एम सॉरी, डॉट जावा फाइल होती है, उसको डॉट क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई कंपाइलर लगता है। सबसे पहले कंपाइलर यूज होता है, जिस कंपाइलर का नाम होता है जावा सी। इन जावा लैंग्वेज में जो कंपाइलर होता है उसको बोलते हैं जावा सी। आर्चर जार एंड डॉक जनरेटर में उसके बारे में आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बताओगे तो नहीं समझ में आएगा अभी। सिक्स पॉइंट इज इंटरप्रेटर लोडर। व्हाट इज इंटरप्रेटर लोडर? मतलब क्या होता है, अपना डॉट क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल, वो इंटरप्रेटर मतलब है। इंटरप्रेटर लाइन को क्या करता है, एक एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो वो क्या डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं लेता, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट, डायरेक्टली बाइट कोड को नहीं लेता। वो पहले बाइट कोड को उसमें लोड करता है, फिर उसको चेक करता है कि तूने बाइट कोड में ये सारा लिखा है या फिर तेरे मन का कुछ भी लिखा है, तूने डॉट क्लास नाम डाला और कुछ भी मन का डाला उस फाइल के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले चेक करता, पहले क्या करता है, पहले लोड करता है, फिर उसके बाद चेक करता है अपना कोड किस में लिखा है, उसके बाद एक लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। मतलब आपका इंटरप्रेटर बहुत सारा काम कर रहा है इसमें, दो तीन काम कर रहा है, राइट। तो दिस इज द मेन, यू कैन से, वही इसमें बताया इंटरप्रेटर लोडर, स्लैश करके मैंने लोडर डाला है। इंटरप्रेटर जो होता है वो लोड करता है सारी चीजें और उसके बाद चेक करता है, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। देन व्हाट इज द JRE? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। JRE, Java Runtime Environment. It is the installation package that provides the environment to only run the program. मतलब क्या? Uh, आपके पास स्टेडियम है, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू दैट example, stadium example. Installation package you have that provide environment to only run the program. आपको रन मतलब आपको मैच रखने के लिए, अभी मैंने एक स्टेडियम लिया, उसमें लोग आएंगे, फिर वो मैच रखने में, वो मैच चालू रखने में, मतलब आपको मैच वो दिखाने में और या फिर वो मैच चालू रखने में परमिशंस राइट लगती है, राइट। JRE, तो JRE क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड्स अ एनवायरनमेंट टू ओनली रन द प्रोग्राम। बस वो मैच को चलने के लिए जो पैकेज मतलब चलने के लिए क्या लगता है, मैच चलने के लिए हमें लिए प्लेयर्स चाहिए या फिर बैट चाहिए, बॉल चाहिए। तो सिर्फ वो मैच चलने के लिए ओनली रन द प्रोग्राम, उसके लिए JRE यूज होता है। देन इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। देन व्हाट इज द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज? मतलब मैंने सॉरी सॉरी, आई थिंक आई रीड रॉन्ग।
The deployment technology, right? I was like, development technology is what? Is a deployment technology. Deploy means uh, deploy का सबसे सिंपल मतलब है एक जगह से सामान लेना, एक जगह से सामान लेना और दूसरी जगह देना। मतलब आपके घर में किसने बोला आपको कि कुछ सामान लाने के लिए, तो आप जाते हो मार्केट में, सामान लाते हो, सामान लाके घर में देते हो, घर में जो देते हो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, राइट? बाहर से सामान लाया और घर के अंदर रख दिया, मतलब उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी, राइट? इन जे आर ई, राइट? In a user interface toolkits, user interface toolkits, what is the user interface toolkits? मैं ये भी प्रोग्राम करेंगे तब बताऊंगा what is the user interface toolkits। एंड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज, बेस्ड लाइब्रेरीज। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज में क्या होता है, आप लाइब्रेरीज जो पहले से कोड के रहते हैं, लोग जिसने जावा बनाया है उसमें सारे लाइब्रेरीज रहते हैं, उसमें आप कुछ चेंजेस करके, मतलब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज मतलब फॉर एग्जांपल आपका हो गया मैथ डॉट मैक्स, उसके अंदर दो नंबर, तो बड़ा वाला नंबर आएगा डिस्प्ले, आपको दो नंबर डालने पड़ते हैं, आपको आपको बाउंस जाएगा, आई नो दैट। इट इज अ लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरी होती है अपना मैथ डॉट मैक्स, दैट इज अ मैथ इज अ व्हाट इज अ मैथ, मैथ इज अ क्लास एंड डॉट मैक्स, मैक्स इज अ ऑब्जेक्ट। समझा ना आपको? अभी मैथ का मेरा क्लास है, मैथ मैथ का मेरा क्लास है, और उसके अंदर सब टॉपिक्स है, मैक्सिमम नंबर, एडिशन नंबर, है वो सारे सारी चीजें। तो मैंने डॉट लगा के उसको कॉल किया, मतलब मेरे क्लास में जो वेरिएबल्स थे, सब टॉपिक्स थे, उसको कॉल किससे किया? डॉट डाल के मैक्स से। अभी आपको मैं लाइब्रेरीज में सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, जब हम यूज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, राइट? तो अभी के लिए रहने देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोग्रामिंग के टाइम बताऊंगा जब हम एक्चुअल यूज करेंगे लाइब्रेरीज का जावा में, राइट? देन व्हाट इज द बेस लाइब्रेरीज? बेस लाइब्रेरीज मतलब अगर हमने सी लैंग्वेज की है, देन आपको प्रोग्राम में बताऊंगा, वैसे मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ ओवरऑल कैसे होता है। बेस लाइब्रेरीज मतलब आपको एक स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग का मतलब एक बंच ऑफ कैरेक्टर, देयर इज अ वन वर्ड, वन वर्ड। आपको ये रिवर्स करने के लिए एक लाइब्रेरीज होती है सी लैंग्वेज में, स्ट्रिंग रिवर्स, एस टी आर रिवर्स। आपने सी लैंग्वेज की है तो आपको मालूम होगा। इट इज अ बेस लाइब्रेरीज, राइट? इट इज अ बेस लाइब्रेरीज, आपको बस नाम डाला उसमें और आपका रिवर्स हो गया स्ट्रिंग, इट इज अ बेस लाइब्रेरी। What is the JVM? Java Virtual Machine consists of Java Virtual Machine। JRE में Java Virtual Machine था, हमने आर्किटेक्चर में देखा, JRE में Java Virtual Machine था, राइट? कंसिस्ट Java Virtual Machine। What is Java Virtual Machine? Java Virtual Machine के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, और आई थिंक मैं तो बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है Java Virtual Machine, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। After we get the dot class file, the next thing happen at a runtime। What is the runtime and compile time? मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ, नहीं तो आपको पहले ही बताता हूँ व्हाट इज द रन टाइम एंड कंपाइल टाइम में क्या होता है। देखो, आपको ये बाद में बताने वाला हूँ। रन टाइम, कंपाइल टाइम में क्या होता है, डॉट जावा फाइल डॉट क्लास में कन्वर्ट होता है, कंपाइलेशन होता है, मतलब डॉट जावा को डॉट क्लास में कन्वर्ट करने के लिए जावा सी नाम का कंपाइलर लगता है और वो कंपाइल करता है इस फाइल को, इज द कंपाइल टाइम। व्हाट इज द रन टाइम? रन टाइम में क्या होता है, क्लास लोड का लोडर है, इसका स्पेलिंग गलत हो गया, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफाई, इंटरप्रेटर, रन टाइम, हार्डवेयर। वही बताया था मैंने, क्लास था, वो इंटरप्रेटर लोड करता है, फिर उसको वेरीफाई करता है, उसमें स्टेप इधर ही वैसे ही लिखा है मैंने। क्लास लोडर होता है, बाइट कोड वेरीफाई होता है, फिर वो लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और उसको ये सब रन टाइम में होता है, राइट? ये सब रन टाइम में होता है। तो आपको पता चला व्हाट इज द रन टाइम, व्हाट इज द कंपाइल टाइम। तो इसमें क्या बताया जेवीएम में, द क्लास लोडर लोड्स ऑल क्लासेस नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रोग्राम रन करना है, तो पहले आपको लोड करना ही पड़ेगा सारे क्लासेस, डॉट क्लास फाइल आपको रन का लोड करना पड़ेगा इंटरप्रेटर में, फिर वो इंटरप्रेटर चेक करेगा, राइट? तभी वो एग्जीक्यूट करेगा या फिर वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, राइट? Then second point is JVM sends code to bytecode verify to check the format of code. So JVM Java Virtual Machine sends code to bytecode to verify to check the format of code.
मतलब वही बताया ना मैं आपको। डॉट क्लास फाइल में जो भी लैंग्वेज यूज की है, बाइट कोड होता है जो कंप्यूटर को ही समझता है। आप खुद से कुछ डाला तो वो मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो वो चेक करता है कि बस वो बाइट कोड में है या नहीं है। The format of bytecode is verified to check the format of code. Right? What is the next? How Java virtual machine works and class loader. The class loader what dot class file load होती है इंटरप्रेटर में, JVM में, right? There is a few steps of loading. लोड करने से ऐसे ही थोड़ी पूरा का पूरा लोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लोड करते हैं. Then what is the step? First step of loading. First is a loading. Um, Reads dot class file and generate the binary data. What is the binary data? Binary data is 0 and 1. It is also called the machine code, right? It reads the dot class files and generate the binary data. An object of this class is created in a heap. What is a heap? The object of this class, आपको बताया था class, उसकी मतलब class उसके अंदर के students हो गए, वो object हो गए, right? The object of this class is created in a heap. What is a heap? Heap is a memory location. मतलब आपका एक class है, उसके अंदर student है. वो student कौन से bench पे बैठा है, कौन से बेंच पे बैठा है, वो वो जो बेंच का जो लोकेशन है ना, उसको बोलते हैं हिप लोकेशन. क्रिएट अ हिप लोकेशन. आपने एक ऑब्जेक्ट दिया, किधर तो जाके बैठा, तो उसको लोकेशन आएगा, वो हिप आएगा. हिप मेमोरी लोकेशन. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे हिप मेमोरी लोकेशन और स्टैक मेमोरी लोकेशन के बारे में, राइट. द नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग. जेवीएम वेरीफाई द डॉट क्लास फाइल. जावा वर्चुअल मशीन जो है, तो वेरीफाई करता है डॉट क्लास फाइल वो बाइट कोड में है या नहीं, राइट. उसके बाद क्या करता है, allocate a memory for a class variable and default values. Allocate a memory for a class variables and default. What is the variable? The variable is a name given to the memory location, right? But that's it. The variable is a name given to the particular memory location to store some values and default values, right? To store some values. Uh, Replace symbolic reference from the type with direct reference. What is the meaning of that? The symbolic reference means there is some special symbols or some special characters that we use in a program that reference from the type with the direct of reference. इसके बारे में आपको बाइट कोड, बिटवाइज ऑपरेटर्स, जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम, तो उसके बारे में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देयर इज एंड और तब स्पेशल सिंबल्स, तब तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आज अभी से ज़्यादा आप नेक्स्ट सेशंस में वो सब आएगा, ऑपरेटर्स एंड ऑल. What is the initialization? The initialization is the all static variables are assigned with their values defined in the code and static block. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब static, what is static variables? Static मतलब जिसके वैल्यूज स्टैटिक होते हैं. मतलब दो टाइप होते हैं, स्टैटिक होता है, कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट के वैल्यू चेंज नहीं होते, स्टैटिक के वैल्यू मेमोरी लोकेशन के हिसाब से, मतलब स्टैक और इसमें होता है. तो स्टैटिक वेरिएबल्स में उसमें क्या होता है, आर असाइन टू विद देयर वैल्यूज डिफाइन द कोड एंड द स्टैटिक ब्लॉक. स्टैटिक ब्लॉक मतलब एक प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक और वेरिएबल जनरेट करने का काम वो पूरा जेवीएम ही करता है, राइट. तो जेवीएम कंटेन्स द स्टैक एंड हिप मेमोरी लोकेशन. मतलब क्या, एक दो बॉक्स है उसके पास, स्टैक और हिप मेमोरी लोकेशन के, या फिर दो मेमोरी है, मेमोरी बॉक्स है, स्टैक और हिप. जब जब वो लोड वगैरह होता है, जब वो लोड होता है, जेवीएम क्या करता है, जेवीएम इधर लिखा था मैंने, जेवीएम इज अलोकेट अ मेमोरी फॉर अ क्लास वेरिएबल एंड डिफॉल्ट वैल्यूज. डिफॉल्ट वैल्यूज क्लास वेरिएबल जो होते हैं स्टैटिक, एंड डिफॉल्ट वैल्यूज जो वैल्यूज होती है जो डिफाइन इन अ कोड, मतलब इसके अंदर ही, हिप के अंदर ही सारा मेमोरी लोकेशन में टेम्परेरी जाता है वो सब. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अभी सिर्फ पढ़ के दे दो. इट इज़ अ फर्स्ट लेक्चर, आपको पूरा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है. आप ऐसे पढ़ो सब, आपको ऊपर ऊपर समझ में आए तब भी कोई बात नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर जब हम एक्चुअली कोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगी, राइट, हाउ इट्स वर्क्स, राइट. Then next point is JVM execution interpreter. मैं आपको बताया था, इंटरप्रेटर इज अ
final stage that convert the machine code class code dot class file to machine code, right? तो JVM एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपको पहले बताया. When a one method is called by many time it will interpret again and again. मतलब मैंने हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट किया तो वो 10 बार हेलो वर्ल्ड को ही लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता बैठेगा, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता बैठेगा. एक लाइन हेलो वर्ल्ड कर दी, फिर दूसरा भी कर दी, तीसरी भी कर दी, चौथी भी कर दी, ऐसे एक एक करते करते जाएगा. बहुत टाइम इसमें जाता है, राइट? तो उसको इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जेआईटी जेआईटी ने लाइफ आसान कर दी. इफ दिस मेथड आर रिपीटेड जेआईटी प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट मशीन कोड. समझा? इजी. सो री इंटरप्रिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. मतलब अगर मैंने हेलो वर्ल्ड एक बार कर दिया, तो वही एक बार कोड जो मशीन कोड में कन्वर्ट करती है, जेआईटी उसको 10 बार प्रोवाइड करेगा क्योंकि 10 बार प्रिंट करना है. दैट्स इट. इट मेक्स एग्जीक्यूशन फास्टर. गार्बेज कलेक्टर. एग्जीक्यूशन मतलब फास्ट हो गया ना, मतलब 10 बार उसने कन्वर्ट ही नहीं किया. जेआईडी में ऑलरेडी स्टोर था तो उससे ही 10 बार ले लिया. तो आपको एग्जीक्यूशन जल्दी होगा, आपको एग्जीक्यूशन प्रोसेस का टाइम बहुत कम लगेगा, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको आगे पता चलेगा जब एक सब टॉपिक है जो मतलब प्लेसमेंट्स के टाइम वगैरह बहुत पूछे जाते हैं. Then I think I explained this, right? What is the compile time? What is the runtime? Again, I am going to explain. The compile time, there is the dot class file are converted into dot Java file are converted into dot class file. That is a Java C compiler, right? It's convert the dot class file to dot Java file to dot class file. I'm sorry, I'm going right. Next is the runtime. There is a runtime that क्लास लोड करता है, फिर वो बाइट कोड में वेरीफाई होता है, मतलब वो बाइट कोड में है या नहीं वो वेरीफाई करता है, जेवीएम करता है सब. तो फिर रन टाइम में होता है सब. फिर इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है एक एक लाइन. और वो हार्डवेयर इज बेसिकली दैट इज अ मेमोरी, राइट? Then is the final page, that is the Java source code, that JDK is transferred to bytecode and a JVM to JRE. I'll explain this. What is this? Java source code जो हम कोड डालते हैं उसको Java source code बोलते हैं, राइट? वो JDK को पास करता है. आपको बोला था ये Java source code होते भी कुछ फायदा नहीं है. हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट नहीं है तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते. हमारे पास कितने भी जावा के फाइल्स हो, जावा सोर्स कोड जेडीके पे पास करता है. अभी जेडीके में इतने सारी चीज़ें होती है. किधर गया आर्किटेक्चर? जेडीके में इतनी सारी चीज़ें होती है तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. तो वही इसमें बताया. जो जेडीके जो है बाइट कोड में किसने कन्वर्ट किया? जावा सी कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया. व्हाट इज अ बाइट कोड? दैट इज अ डॉट क्लास फाइल. वो डॉट क्लास फाइल मैंने जेवीएम में भेजा. जेवीएम, राइट? जेवीएम ने क्या किया? वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में भेजा. जेवीएम ने पहले क्या किया? जेवीएम के अंदर तो इंटरप्रेटर रहता है, तो इसने बाइट कोड पहले उसके अंदर लोड किया, फिर उसको चेक किया, फिर चेक करने के बाद उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया. और कन्वर्ट करते समय जावा रन टाइम इन्वायरमेंट उसको लगता है. जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जेआईटी होता है, जो कंपाइल करते टाइम अगर एक ही लाइन 10 बार रिपीट हो रही है या फिर 2 बार रिपीट हो रही है तो पहले बार उसको जब मशीन कोड में कन्वर्ट किया वो स्टोर होगा जेआईटी में. जेआईटी में उसके ऑलरेडी मशीन कोड रहेगा. तो वो क्या बोलेगा कि भाई तू फिर से मत, तू कन्वर्ट कर, मेरे पास ऑलरेडी है जेआरई के अंदर जेआईटी होता है उसमें है. तो वो बोलता है कि तू 10 बार कन्वर्ट मत कर, बस मेरे से ले ले. वही लिखा है मैंने इधर ही, इधर भी. The method that repeated it provides a direct machine code. कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मशीन कोड पे देता है उसको. So reinterpretation is not required and execution program is faster. So I'm structure all this course like I consider you don't know anything about Java, and in the end of the course, you become a master it, right? You know how to approach the question. Means um, आपको कैसे आपको क्वेश्चन दिया मैंने सॉल्व करने के लिए, इसका कोड लिखो, तो आपको पता चलेगा, क्लिक होते जाएगा कि मैंने ये ट्रिक यूज किया, ये ट्रिक यूज किया, तो फिर मेरे को ये मिलेगा, राइट? बी सपोर्टिंग मैन. जो नोट्स है, जो उसके में लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके नोट्स वो डाउनलोड कीजिए. क्योंकि मैंने
इतने सारी चीजें, इतने सिर्फ 4 पेजेस में इतनी सारी चीजें नहीं है कि आप मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया ना प्रोग्राम के अगर एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो कि हाउ जावा वर्क्स, हाउ जावा कोड एग्जीक्यूट्स, व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेवीएम, right? So thank you very much to giving me your time. Thank you. Bye bye. We see you on a next lecture. Bye bye. Take care. Have a nice day.